ہندوستان کے مسلمان، عرب ممالک کے مسلمان، ہم کو کسی مسلمان سے ذاتیت سے کوئی تعلق نہیں. ہم ہندوستانی ہیں لیکن مسلمان ہیں، یاد رکھو. وفاداری ہم ہندوستان کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ہم ہندوستان. پور شرما جیسے فسادی لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے بجائے ان کے ڈیبیٹ کروائے جا رہے ہیں. راجا سنگھ جیسے کتے کو سڑک پر چھوڑ کر تماشا دیکھا جا رہا ہے. پھر مسلمانوں کے احتجاج کو تم غلط کہتے ہیں. جس آقا کریم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ آقا کی تعلیمات ہے. تم جس ملک میں رہو اس ملک سے وفاداری کرو. ہے یاد رکھ، تجھے دنیا کی کوئی حکومت بچا لے، خدا کی مار سے تجھے کوئی حکومت نہیں بچا سکتی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز حاضرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ نپور شرما جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، یہ اسلام کے خلاف گستاخانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. بلکہ ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا میں اس کی مذمت اور احتجاج کیا جا رہا ہے. اور پھر تلنگانہ میں ملعون ٹی راجا سنگھ نے حضور خواجہ غریب نواز رحمت و رضوان کی شان میں گستاخی کی ہے. اس ملعون بدنام زمانہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف زہر اگلتا چلا آ رہا ہے. اب کی بار اس نے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت و رضوان کی شان میں جو گستاخانہ کلمات بکے ہیں، ہم اس ملعون کے خلاف کنچن باغ پی ایس میں ایک کیس رجسٹرڈ بھی کروایا ہے اور اس کے لیے مذمتی بیان بھی دیے ہیں. لیکن سرکار خواجہ غریب نواز رحمت و رضوان وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اور خانقاہوں میں سب سے بڑی خانقاہ اگر کوئی مانی جائے تو وہ خواجہ خواجگان سلطان ہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمت و رضوان کی خانقاہ ہے. آپ کی بارگاہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر مذہب کے لوگ فیض پا رہے ہیں، پاتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت تک پائیں گے. جہاں پر ہندو مسلم ہر مذہب کے لوگ اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور ان کے دربار سے فیضیاب ہوتے ہیں. اس ملعون نے اس عظیم ہستی کی شان میں گستاخی کی ہے. خیر وہ اسلام کے مزاج کو کیا جانے. آج جو گستاخی ہو رہی ہے، اسلام ایسا پاک مذہب ہے جو صرف اور صرف محبت کا پیغام دیتی ہے اور امن و شانتی کا پیغام دیتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، جس کا دین اس کے ساتھ ہے. ہمارا مذہب دوسرے مذہب کو برا کہنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن آج یہ اپنی اوقات دکھا رہے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف اپنا زہر اگل رہے ہیں. نپور شرما اور یہ راجا سنگھ ایسے کئی لوگ ہیں جو صرف اور صرف ہندو مسلم بھائی چارگی میں فساد برپا کر رہے ہیں. یاد رکھیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی مذہب ہو لیکن کوئی مذہب کسی مذہب کو برا کہنے کا حکم نہیں دیتا، چاہے وہ کوئی مذہب ہو. لیکن یہ لوگ جو آج زہر اگل رہے ہیں یہ کوئی مذہبی لوگ نہیں. آج کہا جاتا ہے
कि ये मुसलमान आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवाद। मैं पूछता हूँ कि हमारे मजहब में आतंक का तो तसव्वुर ही नहीं किया जाता। अब आप गौर करें, क्या कोई के सबूत देगा कि ये हिंदू शराब खाना है, ये मुस्लिम शराब खाना है, ये हिंदू जुए खाना है या मुस्लिम जुए खाना है? क्यों? कोई इसका सबूत दे ही नहीं सकता, इसलिए कि हर मजहब में जुआ हराम है, हर मजहब में शराब हराम है। तो फिर न मुस्लिम शराब खाना हो सकता है, न मुस्लिम जुए खाना हो सकता है, तो फिर ये मुस्लिम आतंकवाद कैसे हो सकता? ये सब सियासी हरबे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इन बदनामे ज़माना नुपुर सिंह और टी राजा सिंह जैसे मलऊनों से एहतजाज करते हुए इनसे अपने दामनों को बचाएं। ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े फसाद बर्पा करके आज अमन व शांति को भंग कर रहे हैं, मगर हमारा काम ये है कि हम अमन व शांति के साथ इस मलऊन और मलऊना के लिए एहतजाज करें। अपने अपने एरिया पीएस में इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करवाएं। और हाज़रीन मोहतरम, आपसे ये गुजारिश है कि आज जो हम ज़लील वक़ार हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि हम इताअत रसूल को भूले हैं और हुजूर के तालीमात को फरामोश कर दिए हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करें और इताअत रसूल में अपनी ज़िंदगी गुजारें, तभी हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चंद रोज़ कबल एक गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा, फिर उसके बाद एक गुस्ताख गरीब नवाज जो खुद को राजा सिंह कहता है, न तू राजा है न तुझ में कोई सिंह है। याद रख, गरीब नवाज हिंद के राजा है और कोई दुनिया का मिटने वाला उनको राजा नहीं बनाया। खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको शान क़िरक़ा पहनाया है, उनको शान के मुकाम पर बिठाया है। और दर गरीब नवाज वो दर है जिस पर हर कौम जाकर माथा टेकती है। तुझ जैसे बदबख्त को क्या पता दर गरीब नवाज क्या है। तूने सस्ती शोहरत की खातिर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की है। अगर तू चाहता है, अगर तेरी शोहरत हो तो कमबख्त तू जाकर गरीब नवाज की चौखट पर सर टेकता तो तुझे ये शोहरत भी मिल जाती, मगर तेरा मुक़द्दर तबाही की तरफ था, इसीलिए तूने गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की है। और उस नुपुर शर्मा जो ये सोच रही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और अब तक तू अपने आप को महफूज जान रही है, याद रख, तुझे दुनिया की कोई हुकूमत बचा ले लेकिन खुदा की मार तुझे बचा नहीं सकती। खुदा की मार से तुझे कोई हुकूमत नहीं बचा सकती। और जो दुश्मनान इस्लाम बार बार नए नए अंदाज में इस्लाम की तरफ उंगली उठाते हैं, मुझे बताओ क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें यह परमिशन देता है कि किसी और कौम के ताल्लुक़ से तुम कुछ बोले? अभी मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया, इस्लाम किसी कौम के लिए बुरा कहने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कुरान में खुद इरशाद है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जिसका दीन उसके साथ किसी के दीन को बुरा मत कहो, ये हमारा इस्लाम हमको सिखाता है। बजाय नुपुर शर्मा को सज़ा मिले, उसको अरेस्ट करें, उसके बजाय बार बार सौ हज़ारों डिबेट चल रहे हैं। क्या हुकूमत सिर्फ तमाशाई बनकर देख रही है? नुपुर शर्मा जैसे फसादी लोगों को जेल में डालने के बजाय उनके डिबेट करवाए जा रहे हैं। राजा सिंह जैसे कुत्ते को
सड़क पर छोड़कर तमाशा देखा जा रहा है, फिर मुसलमानों के एहतजाज को तुम गलत कहते हो। बेशक मैं मानता हूँ हुकूमत के कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सही बात है, लेकिन जो दिल का दर्द है वो कौन सुने और कौन समझे? कौन सी हुकूमत को हम सुनाएं? तुम कहते हो अरब ममालिक, हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, अरब ममालिक के मुसलमान, हमको किसी मुसलमान से जातियत से कोई ताल्लुक नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन मुसलमान हैं, याद रखो। हर मुसलमान, दुनिया के कोई कोने में मुसलमान है, वो मुसलमान हर मुसलमान का भाई है, लेकिन याद रखो वफादारी हम हिंदुस्तान के साथ करते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तुमने जिस आका करीम की शान में गुस्ताखी की है वो आका की तालीमात है। तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो। तुम वो आजीम आका करीम की शान में गुस्ताखी करते हो, फिर कहते हो मुसलमान फितने करते हैं, मुसलमान दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द तुम हो। हिंदू मुसलमान के सुकून को तुम गारत कर रहे हो, हिंदुस्तान के सुकून को तुम गारत कर रहे हो। फिर कहते हो मुसलमान आतंकवादी है। आतंकवादी वो है जो फितना बर्पा करता है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान व हुकूमत तेलंगाना से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि नुपुर शर्मा जैसे लोगों को, राजा सिंह जैसे लोगों को खुला मत छोड़े, इनको सजा दे, इनको जेलों के पीछे डाले। इनको हिंदुस्तान की हुकूमत, तेलंगाना की हुकूमत से मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं और तमाम मुसलमानों से मैं आदबन गुजारिश करता हूं, मोहब्बत का सबूत दें। अपने अपने महल्लाजात में इन जैसे नुपुर शर्मा और राजा सिंह जैसे गुस्ताखों के लिए कंप्लेंट करें, घरों में बैठे ना रहें और दायरे में रह करके एहतजाज करें। अपनी ज़बान से गलत अल्फाज अदा ना करें और किसी कौम के लिए ना कहें, ये गुस्ताखों के लिए कहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन इकराम व नाज़रीन इकराम, जिस मुल्क में हम रहते हैं ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम के साथ जो है बराबर का सलूक करता है और इस मुल्क में हर मज़हब को मानने वाले रहते हैं। इस मुल्क की गंगा जमुना तहज़ीब की मिसालें दुनिया के हर कोने कोने में दी जाती है, लेकिन कुछ चंद शरपसंद अनासिर ने मुख्तलिफ़ अंदाज में हमारे मज़हब इस्लाम पर गुस्ताखाना अपने बयानात के ज़रिए इस अमन व अमान को ख़राब करने की नापाक कोशिश की जा रही है। हुकूमत हिंद से और क़ानून के आला ओहदेदारान से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे शरपसंद अनासिर को फौरी तौर पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। और मैं हमारे तमाम आलम इस्लाम से ये गुजारिश करता हूँ कि अमन व अमान को बरकरार रखें, क़ानून के दायरे में अपना एहतजाज करें और इनको ज़रूर ब ज़रूर सज़ा दिलवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत, पूरे मेरे भाई हज़रात से गुजारिश है, हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हो रही है, यकीन मानिए आप, दिल की गहराई से बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। हुज़ूर पिराने पीर हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार रहमतुल रिज़वान, उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है। इंशाअल्लाह यही मौका है हमारे को सिर्फ मोहब्बत करना,
दिल में बसा लेना मोहब्बत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में है अपन, जमहूरी हक़ है हमारे को, एहतजाज और जो भी हमारे एफआईआर करना है हम कर सकते। हमारी हुकूमत वो मुकाम दी हुई है, अहदा दी हुई है, जो भी है खैर हमको तो बोलने नहीं आता। एक मेरा दिल बोल रहा मेरे भाइयों तक ये बात पहुँचना, सब जाके दिल की गहराइयों से जो आशिक़ रसूल है जाके हमारा जो भी कंप्लेन है एफआईआर है दर्ज कराइए। इंशाअल्लाह जो भी ये कर रहा है राजा सिंह जो एमएलए बोल रहे हैं, उन्हें एमएलए तो नहीं हो सकता। अब गोशा महल एरिया में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, एमएलए रहंदो, सीएम रहंदो, प्राइम मिनिस्टर रहंदो, सबका होता उन्हें तो ऐसा दिख रहा खुद का ही नहीं है, उन्हें उसका खुद का पता नहीं है। इसीलिए ये बेकार बातें करके हम जो हमारी जो मोहब्बत है उसमें खलल पैदा कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह निस्तो नाबूद हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात पे यकीन है हमारे को, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है हमारे को। इंशाअल्लाह हमारे हुजूर की शान में हज़ारों ऐसे कई गुस्ताख़ रसूल है, फिर खाक हो गए, इन्हें क्या कचपिंदा कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह दुआओं की गुजारिश है और खाली हंस के मुस्कुराने से कुछ नहीं होता, ना कुछ बोलने से। मोहब्बत है इंशाअल्लाह। पीर के सामने बैठे हुए है, पीर भी ये जो माइक दिए ना, ये चुप नहीं मिला, ये कुछ है बोल के तो मिला। इंशाअल्लाह उनके सदक़े तो फिर हम ज़रूर से ज़रूर एहतजाज करेंगे। सब जने अपने अपने जो एरिया के हैं अपनी फैमिली को ले लेके हर कोई जाइए। आप रोड पे प्रोटेस्ट मत करिए साहब, हुकूमत से परमिशन मिला तो प्रोटेस्ट करिए, नहीं मिला सीधा जाइए, जाके आप आपकी एफआईआर बुक कराइए। इंशाअल्लाह ज़रूर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश है, नकुल शर्मा के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए इंशाअल्लाह। और हमारे तेलंगाना के जो केसीआर साहब है इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर हमारे दिल की गहराइयों को समझते हैं। उन्होंने तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा ही बोलते हैं हमारे बारे में, अच्छा ही सोचते पूरी हुकूमत के बारे में। ये भी बेहतर से बेहतर हमारे लिए जो हो सकता हमारे दिलों से मत खेलिए। इंशाअल्लाह हमको आपसे उम्मीद है एक्शन लेंगे आप सख्त से सख्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या इलाहुल आलमीन, तमाम आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौलाए ताला हमारे मुल्क में अमन व शांति नसीब फरमा दे। परवरदिगारा दुश्मनाने इस्लाम को तबाह व गारत फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, जो बच्चे एहतजाज करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं मौला तेरे प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल, हुजूर गरीब नवाज के सदक़े तुफ़ैल उनकी रिहाई फरमा दे। मौलाए ताला तेरे प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल हमारी दुआ को शर्फ़ कबूल फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।